സാറുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. എപ്പോൾ വിളിച്ചാൽ കിട്ടും? അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. സാറിനോട് പറയാനായിരുന്നു. എപ്പോ വരുന്നു ഒന്ന് പറയാമോ? എടോ അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. സാർ ഇപ്പൊ ഭോപ്പാലില്ല. ആണോ? അവിടെ നിന്നാ സാറേ. സുധാകരക്കുറുപ്പിനെ പിടിക്കാൻ പോയതാണ്. പറയണോ? ഭോപ്പാലിൽ നിന്ന് കുറുപ്പ് വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. सुधाकर कुरूप സുധാകരക്കുറുപ്പിന്റെ കിണ്ടി വെച്ചിട്ട് പോടാ അവിടുന്ന്. भोपाल इसे पता लगाने के लिए किया। कहाँ जा रखे हो? അവൻ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. അവൻ പെട്ടിയും കിടക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോയി. तब इनके घर नहीं आया था आपने? मामी के घर. നീ ഇതെന്ത് ഭാവിച്ചെങ്ങോട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടു എത്തിച്ചില്ല? ഒരാളെ കൊല്ലാനുള്ള ധൈര്യമൊക്കെ നിനക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഗോപി? ഒരു ശവം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യം. അല്ലാതെ ആരെയും കൊല്ലാനൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞാനായിട്ട് കൊന്നിട്ടുമില്ല. ഇത്ര തരം ഇപ്പൊ ഞാൻ ശാരദയോ? നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇറക്കി വിടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനിങ്ങ് പോകും. ഇന്നൊരു ദിവസം ഞാൻ അവിടെ തങ്ങിക്കോട്ടെ. ഒരേ ഒരു ദിവസം. तब लेके गए थे उसको अपने घर ना? वो वहाँ भोपाल में था। ये आराम से खाना खा रहा था। इंसुलिन के इंजेक्शन भी तो यही लेता था. इसे डायबिटीज था मतलब. മണിയമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ബോംബെ. बता के गया था शायद ना वो. पर इसने केवल एक दिन रहना था ना यहाँ. इसलिए बताया होगा शायद. वही था ये. अच्छा हाँ ये भी वही था इसी वेश में. हाँ पुलिस वाले उसको पहचान भी नहीं पाए. ഇന്നലെ വിളിച്ചായിരുന്നു. കക്ഷി ഇപ്പം ബോംബെയിലാ. ശാരദമ്മയെ കാണാൻ ഒരു സഹായം ചോദിച്ചാ വിളിച്ചേ. വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം മണ്ടനാണോ കുറുപ്പ്? ശാരദാമ്മ എവിടെ പോയി കാണും? ജയിലിലോ? 1984. अच्छा इसको गिरफ्तार कर लिया. पर ये तो पर्चे में था ना. ये तो पर्चे में थी. वापस आ गई थी चैत वो. अच्छा उसने कुछ मैसेज भी दिया उसको. इसकी मम्मी है. किस तरह से वेश बदल बदल के भाग रहा हो. എന്നെ വിളിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ അറിയിക്കാം. अलग अलग स्टेट में भागने पे लगा. अब पंजाब चला गया. തീരുമാനിച്ചു. അവിടേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ഇസാഖിനെ മേൽപ്പിച്ചു. പോലീസ് എന്റെ മണം പിടിച്ച് അവിടെ എത്തി. अच्छा तब तो पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया. पुलिस इससे भी फास्ट निकली. അതുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോലീസ് കുറുപ്പിന്റെ പിന്നാലെയല്ല, പകരം കുറുപ്പ് പോലീസിന്റെ പിന്നാലെയാണ്. भैया इस गाड़ी के पीछे जाओ. तो उसका पीछा क्यों कर रहा हो? ताकि पता चले उनके बारे में कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या क्या है. पुलिस की वर्दी में चला गया मैं. पुलिस वाले उसको पहचान भी नहीं पा रहे.
ऐसे कैसे नहीं पहचान रहे उससे नहीं अरे ऐसे कैसे पहुंच भी गया वो पुलिस स्टेशन वही में तो। और तो ये पॉसिबल थोड़ा ना नहीं वो आया ही अंदर बैठा है वो। अच्छा अब दिखा रहे हैं इन्हें उसकी फोटो इन्होंने देखा नहीं था ओ उसके बगल से अच्छा। ही निकला वो था उस दिन। मुझे लग रहा तब उस इसी शिप में भाग गया वो उसका उस गाड़ी का ड्राइवर गायब नहीं था उस दिन। हाँ। यही तो था उसका। हाँ यही तो चाहता था वो उसमें जाना। ये कौन था लेकिन? अरे ये कोई छुपा हुआ था नहीं था छुपा हुआ था अरे किस्मत उसकी सही निकली। अच्छा वही था वो भेष बदलने वाला हाँ साधु। उसको नहीं पकड़ा था उन्होंने अच्छा तो वहां से ऊपर आ गया था अच्छा इसने ध्यान नहीं दिया। ये ऊपर नहीं गया है ऊपर जाता तो पकड़ लेता है फिर उससे इसकी वजह से ही बच जाओ वास को कपड़े भी मिल गए थे। अब कपड़े चेंज कर लेगा तो इसी शिप में भाग गया था ഡ്രൈവറിനെ കാണുന്നില്ല ഈ പദ്ധതി പക്ഷേ സത്യം അതായിരുന്നു हाँ सच तो नहीं रहा होगा ना वो। सच तो कुछ और ही था। उसने पहचान लिया उसको। വാട്ട്സ് മൈ ന്യൂ നെയിം अलेक्जेंडर। സുൽത്താന്റെ മൂന്നാമത്തെ ബീവിയിലുണ്ടായ നാലാമത്തെ പുത്രൻ എന്ന ഖ്യാതി വെറും പിണമാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ വാലിദ് എന്ന ഈ രാജപുത്രൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ അതായിരുന്നു വാലിദിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. സുൽത്താൻ അറിയാതെ അത് കടത്തുക എന്നതായിരുന്നു അവനെന്നെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോൾ. अच्छा അതായത് എൻ്റെ ജീവൻ അത് തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. വിലയുടെ ഇരട്ടിയോളം വാലിദിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അവൻ എറിഞ്ഞു വന്ന എല്ലും കഷ്ണവും. ശുക്രൻ അർബാബ്. അയാൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ഇന്ന് വരെ ഒരു രാജരക്തവും ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടില്ല. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. $3 മില്യൺ ഞാൻ സുൽത്താൻ അറിയാതെ കടത്തി. കാശുമായി വാലിദിനടുത്തേക്കല്ല പോയതെന്ന് മാത്രം. उसको भी धोखा दिया उसने लास्ट। മോർച്ചറിയിൽ വിറങ്ങലിച്ചെടുക്കുന്ന പഴയ ശവം മാത്രം മതി നമ്മൾ ശാഠ്യം പിടിക്കണ്ട. ഒന്ന് ഇറങ്ങി തപ്പിയ അല്ലാതെയും കിട്ടും. अच्छा तभी ആ കാണുന്ന കക്ഷി തല്ലാൻ പറഞ്ഞാൽ തലോടും, തലോടാൻ പറഞ്ഞാൽ തല്ലും. जानबूझ के उसका फायदा उठाया। എനിക്ക് മനസ്സിലായി. अच्छा इनका सब प्लान था। വണ്ടാനത്തോട് വേണ്ട, പിള്ളച്ചന് വീട്ടിലേക്ക്. लेवी उसे करने गया ताकि खुद तभी न फंसे दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकता था ना अपनी फ्रेंडशिप के लिए, और उसने उसी का फायदा उठाया। हाँ അത്രമായിരുന്നു ആ 8 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ്. ഒരു അക്കം പറടോ. वो पॉलिसी में उसने 8 लाख ही लिखा था ना। വാലിദ് സ്വപ്നം കാണുന്ന ആ $3 മില്യൺ ഇനി എന്റേത് മാത്രം. അലക്സാണ്ടർ अब कौन आया? സുധാകരക്കുറുപ്പ് എന്നും പിടികിട്ടാ പുള്ളിയായി തന്നെ തുടരണം. അയാൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ശിക്ഷ. Алло, капитан слушает. Can I speak to Walid?
ये तो है वाली। It's very sad that you haven't had him yet. Looking for the same person. अच्छा ये भी इसके साथ ये भी मिल उसे गया। ही ढूंढ रहा है Suffers every inch to death. कि इसे भी धोखा दिया उसने। Yeah. Walid. The rat you're looking for is on your ship. I will take good care of him. अच्छा तभी तभी तो शॉक हुआ, इससे कैसे पता नया नाम? किसी ने दिया था उसको अलेक्जेंडर। हाँ കുറുപ്പെന്നും പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി തന്നെ തുടരും. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ചാർലിയുടെ മകൻ ആ പഴയ കണക്ക് തീർക്കണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവനോട് പറയണം, അത് പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ ഒരു പോലീസുകാരൻ തീർത്തു കൊടുത്തു. अच्छा उस दिन इसने डिसाइड किया था कि मैं सब पकड़ के रखूंगा। उसका ये तो रिटायरमेंट उनकी पूरा भी हुआ, अचीवमेंट। उसने पूरा केस भी पढ़ लिया। केस भी पढ़ लिया। ഇത് മറന്നു. उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई। ठीक है अलेक्जेंडर, ये दूसरा है कोई? क्या किया होगा इसने? कुछ तो करा होगा इसमें पक्का। LLC 2005। यही तो है वो अलेक्जेंडर। उसको मार दिया शायद। दोस्तों ये थी कुरु फिल्म, और फिल्म काफ़ी अच्छी है। जिस तरह से इसमें जो सस्पेंस है वो काफ़ी बना रहता है काफ़ी लंबे समय तक, और धीरे धीरे वो सस्पेंस जो है वो मतलब सामने आता है ना। हाँ पूरी क्या हो रहा है फिल्म में, आखिर वो समझ नहीं आ रहा होता पहले कि आखिर ग्रुप कर क्या रहा है और वो ये सब क्यों कर रहा है। तो वो सब धीरे धीरे जिस तरह से वो खुलता है आखिर, तो वो देखने में काफ़ी मज़ा आता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है मूवी देखने में। और पूरी मूवी सस्पेंस से भरी थी। जब मूवी की स्टार्टिंग हुई तो मुझे लगा मतलब ऐसे होगी, मतलब एकदम फनी मूवी की, ऐसे लग रहा था कि उसकी लाइफ से रिलेटेड होगी, जिसमें मतलब एयरफोर्स में जाएगा शायद, कुछ मतलब वॉर वगैरह में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि उस टाइम पे 97 की वॉर भी हुई थी, तो उसके बारे में थोड़ा बताया गया था। तो मुझे लगा था कि मतलब इस मूवी स्टार्टिंग में ऐसे ही कुछ होगी, मतलब इसी से रिलेटेड होगी, कुछ एयरफोर्स से रिलेटेड। लेकिन बाद में जो ट्विस्ट आया मूवी में, जब मतलब उसने मतलब ऐसे रूमर फैलाया कि उसने सुसाइड कमिट कर लिया, और उसके बाद जो पर्शिया गया, तब जाके एक्चुअल जो स्टोरी है मूवी की वो शुरू हुई कहीं ना कहीं। और पूरी मतलब स्टोरी अलग ही थी। स्टार्टिंग में कुछ अलग मतलब लग रहा था, है ना, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ वैसे होगी एयरफोर्स से रिलेटेड, लेकिन बाद में मूवी ने मतलब कुछ अलग ही यू टर्न ले लिया, और कहाँ से कहाँ मतलब हम बोल नहीं सकते वो हीरो था इस मूवी में, विलन था, मतलब विलन ही था। मतलब पूरी तरह से विलन भी नहीं कह सकते, पर ये है कि क्रिमिनल मतलब तो था, उसने गलत तो हर जगह नहीं, किया। हाँ, अगर करप्शन वाइज देखा जाए, जो उसने करप्शन किया वो तो गलत किया उसने, क्राइम तो उसने हर जगह किया। नहीं, पर जैसे वो जो आदमी था वो चार्ली, उसको उसकी जो मौत हुई, तो उसमें उसका कोई हाथ नहीं था वैसे अगर देखा जाए, क्योंकि उसने तो उन्हें केवल लाश लाने के लिए बोला था,
पर उन लोगों ने किसी बेगुनाह को मार पर दिया उसने था। पहले ये भी बोला था कि लास्ट में क्लाइमेक्स में कि ये दोस्त है मेरा, ये अपने मतलब दोस्ती के लिए कुछ भी कर सकता है। तो उसको तो पता तो था ना, ये कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता था। तो पता तो रहा होगा उसको कहीं ना कहीं, पर वो भी तो मतलब अपना काम नहीं ये नहीं था शायद उसे पता ना, कि ये मार देगा किसी को। उसे ये लग रहा था होगा कि ये लास्ट तो जरूर लाएगा कहीं ना हाँ कहीं से। मतलब वो तो उसको पता था, पर कहीं ना कहीं उसकी वजह से तो मतलब जब उसने मतलब कुछ मतलब क्लियर नहीं करा और उनको पैसे को कहीं ना कहीं लालच देख के उनसे गलत काम करवाया। हाँ पर गलत तो उसने किया ही इस तरह से ना, उनको पैसों को लालच दे के फिर उन्होंने जिस तरह से एक बेगुनाह आदमी को मारा, तो वो सब तो उन्होंने गलती किया, पर गलत उसी के कहने से किया ना उन्होंने। पर एक तरह से क्रिमिनल भी बोल ही सकते हैं, क्रिमिनल ही था उसमें। और जिस तरह से वो इतना करप्शन करता था मतलब उसका माइंड जो था हमेशा पैसे के पीछे भागता था। मास्टरमाइंड था जहाँ गया वो, जैसे स्टार्टिंग में वो वहाँ भी था, अपने ट्रेनिंग पीरियड में भी था, तो वहाँ उसने शराब की बॉटल्स बेची और शूज बेचे आर्मी वालों के। फिर जब वो बॉम्बे गया तो उसको मतलब ऐसे लग रहा था कि यहाँ मतलब कुछ पॉसिबल नहीं है, वो मतलब परेशान भी हो रहा था। लेकिन जब उसको वहाँ की मतलब ताले की चाबी मिली, जो भी उसको काम मिला था तो वो सप्लाई करने का, फिर उसको वहाँ से नया आइडिया आया। और जब उसने देखा कि वहाँ से भी मतलब उसका कुछ मतलब फंसने के चांसेस हैं, तो फिर उसने मतलब अपना मतलब झूठा ड्रामा किया मरने का, अपना दैट सर्टिफिकेट बनाया। फिर वहाँ से वो पर्शिया गया, फिर और पैसे कमाने के लालच में वो, और मतलब होता है ना इंसान मतलब लालच के चक्कर में करता, तो बोलते कि मतलब ग्रीडी होना अच्छी बात नहीं है, लालच ही सब मतलब वो पाप का कारण होता है। तो उस लालच के लिए, उन पैसों के लिए देखो मतलब जब वो पर्शिया गया तो ठीक ठाक तो हो ही गया तो फाइनेंशियली। हाँ वो तो काफी अच्छी खासी उससे सैलरी मिलती थी एक तरह से उसकी लाइफ बहुत अच्छी थी। अब मतलब वो फिर मतलब वहाँ गया रॉयल फैमिली में कि अब मतलब कि और पैसा आए, और ज्यादा पैसे कमाना चाहता मतलब वही ना उसका लालच बढ़ते गया, टाइम के साथ बढ़ते गया। अब लालच बढ़ा तो, पर हुआ क्या लास्ट में वो फिर से बच निकला क्लाइमैक्स में। वो अलग क्या था, वो वालिद था, उसको फिर भी पकड़ नहीं पाया और फिर से भाग गया और कहीं रह रहा था फॉरेन में लास्ट में। तो मतलब फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है और फिल्म की जो कहानी है वो भी काफी अच्छी है और स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक मतलब ये है कि एक वो जो ना एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और लास्ट में वो 2 बॉडीगार्ड के साथ घूम रहा था और नए नाम के साथ, अलेक्जेंडर के साथ। तो मतलब काफी लग्जरी लाइफ वो जी रहा था वहाँ भी, जहाँ भी फॉरेन में था। पर उसकी बीवी बच्चे नहीं दिखाए गए बाद में ना, पता नहीं क्या हुआ उनके साथ। नहीं वो भी उसी के साथ ही होंगे शायद। पर मूवी बहुत अच्छी है, मजा आया मूवी को देख के। और दुलकर सलमान की जिसमें एक्टिंग थी वो मतलब काफी अच्छी थी। इनकी मूवी बहुत अच्छी रहती है, जितनी भी मूवी हमने देखी सब मतलब अच्छी रहती है, मजा आता है उनको देखने में। और मतलब जैसे उनकी फिल्में होती है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, कहानी काफ़ी अलग सी होती है, एक नई सी कहानी होती है और मतलब एक वैसी फिल्म रहती है उनकी जो मतलब बांधे रखती है ऑडियंस को ना। तो ये फिल्म भी उसी तरह की थी और काफ़ी मतलब मज़ा आया फिल्म को देखने में और क्यूरियोसिटी बनी रही लास्ट तक ना, एट द एंड कि क्या होगा मतलब क्लाइमैक्स समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब लास्ट में ऐसे लग रहा था कि पुलिस नहीं पकड़ पाएगी उसको। खैर पुलिस वालों ने तो पकड़ा भी नहीं, पर वालिद ने उसको पकड़ लिया था, फिर भी वालिद भी नहीं पकड़ पाया। और मतलब लास्ट में जो हेडलाइन बताई गई थी, मतलब दिखाई गई थी न्यूज़पेपर की कि प्रिंस की फैमिली भी मतलब एक्सीडेंट में मतलब पूरी फैमिली मारी गई है, तो अलेक्जेंडर को तो मतलब उसको कोई पकड़ नहीं पाया, कुरूप को। तो ये थी कुरूप फिल्म और काफ़ी अच्छी फिल्म है। आपको आज का हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।